Bismillahirrahmanirrahim. So as you have gone through all those lecture so far, and the last lecture I told you that the discussion on this harmonic excitation of damped and undamped structure is now over, and we will be solving few problems, numerical problems related to all these two topics. Rather not these two topics, there are, I think, numerous topics that we have covered so far, and in a series of lectures, I think we have spent about 4 or 5 weeks in the discussion of all these harmonic excitation and of damp and the undamped structure. So inshallah today we'll be covering in 2 parts because the numerical problem also takes a lot of time. So we'll be covering in 2 parts. In the first part, I'm planning to at least cover 3 to 4 examples, because as you have already gone through so many problems and you know the techniques and the methodology of solving all those problems. So I will not be spending too much of time on explanation, on discussion of those problems. So let's start with this problem number 3.1. All of these problems are from the from the Anil K. Chopra book. So let's read the description of this problem. So description says that mass m, stiffness k, and natural frequency omega n of an undamped singularity degree of freedom system are unknown. So these 3 values are unknown, and with the mass, stiffness, and the natural frequency, and these properties are to be determined by the harmonic excitation test. So the structure is undamped structure, and you are applying an harmonic excitation just to determine all those properties, the stiffness, mass, and the natural frequency. So at an excitation frequency of 4 Hz, these responses tends to increase without bound. That is at resonance condition. So at 4 Hz, it means at 4 Hz, the forcing frequency and the natural frequency matches. So naturally you will see that this is the natural frequency of the structure. So we will see what exactly would be happening. So next, the weight of delta W 5 pound is attached. Additional weight has been attached to this assembly of this structure to the mass m, and the resonance test is repeated, and we will be repeating that test again. This time resonance occurs at 3 Hz. So with the addition of 5 pound weight, the resonance now occurs at 3 Hz. So determine the mass and stiffness of the system, and you have to find the mass and stiffness, because the natural frequency, naturally you can calculate from the resonance what exactly is happening because of the resonance. So as for the solution is concerned, from the given data, you can see that k upon m, we already know, is omega n square. And while writing into the CPS form, Fn form, we can write in 2 pi Fn square. And as Fn is 4 natural frequency, and because we knew that the resonance has occurred, so it means that the resonance would occur at the natural frequency. And in the first case, when this structure, there was no additional weight attached to this structure, so the resonance occurs at 4 Hz. That's 4 2s are 8, and then it's 8 pi. So k upon m is 64 pi square. So, and next case, when you are attaching a mass of 5 pound additional mass, so that is omega n dash 2 pi Fn dash, and then in this case the frequency, resonant frequency occurs at 3 Hz. So 3 into 2 is 6, so that would be 36 pi square. So dividing equation A by equation B gives this thing, because we have to simplify this and we have to find the k and m from this. So from all these things, you can see that the mass is equal to 6.43 upon g pounds per gram. Per g, sorry, this is. So from equation A, now putting this value of this one, you can find from the equation A that k is 10.52 pounds per inch. So I hope this is one of the easiest question, but the understanding and knowledge of the previous, all those things that we have already discussed, that should be clear in your mind. And you knew from that knowledge that we can find out the natural frequency and we can find out the mass from this formula, and we knew that the resonance will occur at when the forcing frequency matches the natural frequency. From that understanding, we utilize those concepts and we try to solve this particular problem, and we got the very right result. So that was the simplest one. So let's move to the next problem, which is problem 3.2. And in this problem, let's read the description. A single degree of freedom system is excited by a sinusoidal force. At resonance, the amplitude of the displacement was measured to be 2 inches. So this is very critical information, that at resonance, so this is the resonant amplitude, and the displacement was measured to be 2 inches. So at an exciting frequency of 1/10 of the natural frequency.
So forcing frequency is 1/10 of the natural frequency of the system. The displacement amplitude was measured to be 0.2 inches. So at resonance, amplitude was 2 inches, and when you reduce the forcing frequency to the 1/10 of the natural frequency, the amplitude decreased to 0.2 inches. So estimate the damping ratio of the system. So another very interesting problem. So at resonance, from equation, this is the equation that you can go and check in the book. Which equation is this? U naught is equal to U st naught upon 2 zeta, and at resonance the amplitude is 2 inches, so that's why we have put equation 2 on the right hand side of this equation. So at forcing frequency is 1/10 of the natural frequency. You can see there, this is forcing frequency 1/10 of the natural frequency, and from this particular equation of the book, we knew that U naught is very nearly equal to U st naught is 0.2, because at that resonant frequency the resonant amplitude is very close to the static amplitude, and that is the 0.2 inches. So substituting U st naught is equal to 0.2 in equation A, so we get this thing, zeta is equal to 0.05. Okay, this is another very simple and very easy question. So let's move ahead. This is problem 3.3. In a force vibration test under harmonic excitation, it was noted that the amplitude of motion at resonance was exactly 4 times. So at resonance, the amplitude is exactly 4 times of the amplitude at an exciting frequency of 20% higher than the resonant frequency. Okay, so this is the critical information, and you have to इसको grasp करने की ज़रूरत है कि क्या कह रहा है. Determine the damping ratio of the system, and again you have to find the damping ratio. So 2-3 इसके अंदर critical चीज़ें आई हैं. So assuming that the damping is small enough to justify the approximation that the resonant frequency is omega n, ठीक है, and the resonant amplitude of Rd is half zeta, then the given data implies, if you are assuming all those things, तो फिर आपके at resonance जो amplitude आ रहा है वो यही आ रहा है जो कि हमने लास्ट उसमें भी आपने देखा था, ठीक है. और ये जो 1.2 ओमेगा एन की सूरत में जो आ रहा है, जब फ्रीक्वेंसी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 20% ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसकी सूरत में आपके पास यू नॉट का ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, जो ओमेगा अपॉन ओमेगा फ्रीक्वेंसी रेशियो की अगर आप वैल्यूज़ के अंदर डालते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है. सो कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी विल गेट यू टू दिस थिंग. ए और बी को कंबाइन किया, ठीक है, और अगर आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, जब आपके पास 20% ग्रेटर था फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड, और ये वो रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, तो ये 1/4 आ रहा है. ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्रिप्शन से अवेलेबल थी. सो इन दैट केस इक्वेशन सी जो है वो आपको जीटा की वैल्यू 0.0576 दे देती है, ठीक है जी. तो ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान सा सवाल था. तो अज्यूमिंग ऑफ स्मॉल डैम्पिंग अप्लाइज इन इक्वेशन ए इज़ रीजनेबल. हम सब जानते हैं इसको, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया. अदरवाइज वुड हैव टू यूज़ द एग्जैक्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर वो ये होती है. क्योंकि जीटा अगर आप देख रहे हैं तो वेरी स्मॉल जीटा, अबाउट 5% आ रहा है. तो वो जो हमने अजम्पशन की हुई, दैट इज़ नॉट दैट मच रॉन्ग. यू कैन स्टिल अज्यूम दैट अजम्पशन, एंड यू सी कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं दैट आर वेरी मच जो है वो रियलिस्टिक और क्लोज वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी. तो एग्जैक्ट रेजोनेंट एम्पलीट्यूड जो है वो फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. सो इक्वेशन 3.4 है, ये भी काफ़ी अच्छा सा सवाल है कि ए मशीन इज़ सपोर्टेड ऑन 4 स्टील स्प्रिंग फॉर विच डैम्पिंग कैन बी निगलेक्टेड. तो स्टील स्प्रिंग्स हैं जिसके लिए डैम्पिंग को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर इज़ अनडैम्प्ड, दूसरे लफ्ज़ों में ये है. एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल वाइब्रेशन ऑफ द मशीन स्प्रिंग सिस्टम इज़ 200 साइकिल्स पर मिनट. एक मिनट में वो 200 साइकिल वो मशीन करती है. The machine generates a vertical force of this much. The amplitude of the resulting steady state vertical displacement of the machine is 0.2 inches when the machine is running at 20 revolutions per minute. RPM उसने दे दिया 1.042 at 180 RPM and 0.0248 at 600 RPM. तो डिफरेंट उसने जो RPM पे रिवोल्यूशन के ऊपर उसने ये एम्पलीट्यूड आपको दिए हैं. So calculate the amplitude of vertical motion of the machine if the steel springs are replaced by 4 rubber isolator. अब वो कह रहा है कि आपने
स्प्रिंग को हटा के रबर आइसोलेटर रख दो विच प्रोवाइड द सेम स्टिफनेस उसकी सेम दे रहा है जो रबर की है और जो स्टील की है। अब यहाँ जब रबर आएगा तो फिर उसके अंदर डैम्पिंग भी आ जाएगी, बट इंट्रोड्यूस डैम्पिंग इक्वल टू 25% फॉर द स्टम। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपने एक दफ़ा पे अनडैम्प कर दिया और आपको डैम्पिंग आ गई है, तब फिर कह रहा है कि रेजोनेंट एम्पलीट्यूड के अंदर और ये जो आपके इस फ्रीक्वेंसीज उसने दी हैं इसके एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा इंट्यूशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि अगर हम डैम्पिंग को रिड्यूस करेंगे तो बिकॉज द स्टिफनेस इज सेम, जो रबड़ की और स्टील की दोनों की स्टिफनेस सेम डाल रहे हैं, तो यहाँ अगर हम डैम्पिंग के आने से एम्पलीट्यूड यकीनन घटना चाहिए। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द आइसोलेटर एट वेरियस मशीन स्पीड, तो डिफरेंट स्पीड की मशीन की जो आ रही है उस पर रबर आइसोलेटर कैसे कितने इफेक्टिव हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपसे कमेंट मांग रहा है। तो बड़ा मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अब इसके 3 पार्ट हैं, मुख्तलिफ उसने RPM के ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, तो हैव टू डू द सेम थिंग। सो मशीन रनिंग एट 20 RPM, सो फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है दैट इज़ 0.1, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये आ जाता है इक्वेशन ए, जो हमारी पहले से हमने इस्टेब्लिश की हुई इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज़ को डाल देते हैं तो आपके पास UST0 इज़ 0.1 या 0.2 के करीब ही आ रहा है, तो बहुत मिनिमल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो फॉर जीटा अब अगर आपने लगा दिया जिसमें आपने डैम्पिंग 25% इंट्रोड्यूस कर दी थी और फोर्सिंग रेशो जो था आपने वो यही रखा, तो इस केस के अंदर आपके पास जो U0 आ रहा है वो आप देखेंगे कि 0.1997, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच डिफरेंस। तो ये 0.2 है, तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत जो है इसके करीब आ गया। 0.2 की जो स्टैटिक एम्पलीट्यूड था इसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया, ये भी बहुत करीब है। आई कैनॉट से 0.198 है, ये 199 है। तो आपको पता है कि जब आप फोर्सिंग रेशियो बहुत कम होता है तो फिर ये चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं। अगर आपको जाके अनडैम्प स्ट्रक्चर का आप उसमें देखेंगे कि अगर फोर्सिंग रेशियो कम है तो फिर कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने वो बात की थी कि भाई मास की सूरत में कंट्रोल करता है, स्टिफनेस की सूरत में कंट्रोल करता है और डैम्पिंग कहाँ जाके कंट्रोल करती है। तो ये 3 चीज़ें थी आपके पास ना। तो यहाँ अगर आप जाके देख करके ये इस प्रॉब्लम को उस नॉलेज के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। तो ये होपफुली 20 RPM के ऊपर कहानी आपको समझ में आई। अब ये 180 RPM के ऊपर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो फोर्सिंग जो फिर फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो 0.9 के करीब आ गया है, तो रेजोनेंस के बड़े करीब आ रहा है। तो यहाँ आप कहानी थोड़ी सी परेशान कुन होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन ए जो है इस पर एम्पलीट्यूड ये था और जो UST0 है अगर आप देखते हैं तो वो 0.2 है। ज़ाहिर है 0.2 तो हमें वहाँ से मालूम था। तो ये जो सारी कैलकुलेशन के बाद आपको चीज़ पता चली वो ये पता चली। अब अगर आप जीटा ले आते हैं और ये फ्रीक्वेंसी रेशियो ले आते हैं तो आप देखिए कि आपके पास जो U0 है वो रिड्यूस होकर 0.4053 चला गया, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आ सकता है कि आप 180 RPM के ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ रिड्यूस नहीं हुआ या ये इंक्रीज़ हो गया, 0.40 पर चला गया, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हम बहुत करीब आ रहे हैं ना। जैसे जैसे रेजोनेंस के करीब जाते हैं तो एम्पलीट्यूड यकीनन बढ़ता है, जो हमारी नॉलेज है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 0.2 से 0.4 हो गया, तो नियरली डबल हो गया है। तो अगर आप जाके 25% जो आपके फिर डैम्पिंग वाले कर्व है ना, तो उसमें अगर आप 20 और मेरा ख्याल है उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट जंप करते हैं शायद 70 पे। बहरहाल देखिएगा आप उसको कि अगर 20 और 30 के दरमियान में अगर कोई 2 कर्व बने हुए हैं कि एक में डैम्पिंग रेशो 20 और अगले में डैम्पिंग रेशो 30 है, और उसके दरमियान आप जाके देखें कि रेजोनेंस के ऊपर डिफॉर्मेशन का जो एम्पलीट्यूड फैक्टर है, डिफॉर्मेशन फैक्टर एम्पलीट्यूड फैक्टर जो है वो कितना है, तो आप देखेंगे नियरली 2 के करीब होगा। तो जिसकी वजह से अगर आप इसको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये 0.2 को और इसके साथ, तो दैट इज़ वेरी नियरली इक्वल टू डबल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो लेट्स मूव एट 600 RPM है, तो फोर्सिंग रेशो जो है, फ्रीक्वेंसी रेशो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता हमारे लिए, जो हमारा नॉलेज है इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ जो है ये चूँकि ये इन्फॉर्मेशन इक्वेशन ए से हमें गिवन थी, अब हम जीटा को इंट्रोड्यूस करा के देखते हैं तो क्या होता है। तो ये देखिए कि 0.0243 0.2 से 0.02 के ऊपर चलेगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। ये हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी रेशियो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जो डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा सवाल था, होप आपकी समझ में आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी अंडरस्टैंडिंग इस सवाल का समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इस सवाल को अगर देख रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आया है तो डू पॉज हियर एंड डू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अप्लाइड लेवल का सवाल है, जो कि कंसेप्ट हमने वहाँ पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र आती है यहाँ हमें। तो ये जो हमने 3 किए हैं उसका सोल्यूशन ये समरी है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.1, फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.9 एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो 3। तो डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड को आप मेजर कर सकते हैं अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर का, दिस इज़ फॉर द अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दिस इज़ फॉर द अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ फॉर द 0.25 जो 25% डैम्पिंग के साथ ये आ रहा है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या क्या कहानी हो रही है।
ओके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये भी मेरे हिसाब से, क्योंकि डैम्पिंग ने, अगर आप ये रेजोनेंस के ऊपर देखें कि कितना बड़ा फ़र्क डाला है इस रेजोनेंस के ऊपर। ये अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर की अगर आप रेजोनेंस पे देख रहे हैं तो 1.042 आ रही है, और अगर आप डैम्पिंग के साथ देख रहे हैं तो 0.0453 है। हालांकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हम बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो आइसोलेटर्स क्या हुआ, उसने बड़ा इफेक्टिव काम प्ले किया है, बिकॉज ये जो सारी चीज़ थी इसने आइसोलेटर के काम किए थे इन तमाम चीज़ों ने। तो इस केस के अंदर आइसोलेटर का आप देख रहे हैं कि ये अगर फ्रीक्वेंसी रेशो बहुत लेस है तो फिर आइसोलेटर का कोई काम है ही नहीं है, आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसी रेशोज़ हैं उस पर फिर आइसोलेटर मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या आपको भी ये फिगर नज़र आ रहे हैं, तो फिगर दमसेल्फ आर स्पीकिंग, जो लाउडली के बता रहे हैं आपको कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सारी कहानी थी। आपने इसका रिस्पांस भी देख लिया है कि क्या इफेक्टिवनेस को भी हमने देख लिया है कि क्या उसकी इफेक्टिवनेस आई है। ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल में हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ताकि 2 ब्रेक पार्ट्स में ये लेक्चर ब्रेक हो जाए, तो हम फिर इसको 3.5 से आगे मज़ीद उसको कंटिन्यू कर लेंगे।